Dear students, Assalamu alaikum. As you know that we have been discussing fringe width. Now, what is fringe width? The separation between the centers of the two consecutive bright fringes is the width of a dark fringe. Fringe width is denoted by beta. Therefore, beta must be equal to yn minus 1, where yn is the distance of the first dark fringe, first bright fringe from the center of the screen, and yn minus 1 is the distance of the second bright fringe from the center of the screen. Yeah, or we can say, suppose if n is 3, then y3 is the third distance of the third bright fringe from the center of the screen, and yn minus 1 automatically will become 2. That is 3 minus 1, that is 2. So it will be the distance of the third minus the distance of the second bright fringe. That is the width of the dark fringe. जो पहले हमें निकालनी है, फॉर एग्जांपल थर्ड ब्राइट फ्रिंज कौन से है या फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज कौन से है, तो फिफ्थ और फोर्थ के बीच में जो सेपरेशन होगी दैट विल बी द विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज, वो डार्क फ्रिंज की विड्थ होगी. Now what is yn? We have already calculated it. Yn, the value of yn is n d lambda by d minus, similarly yn minus 1 will be, we have to substitute for n as n minus 1. n के बदले में n minus 1 दूसरे में substitute करना है. So beta is equal to the value of yn is n d, this one, n d lambda by d. So यहाँ पे हमें लिखना है n के बदले लिखना है सिर्फ n minus 1, बाकी वही लिखना है d lambda by d. So यहाँ पे मैंने लिखा है n minus 1. तो अब यहाँ पे जो कॉमन निकाला मैंने that is n d lambda by d, ठीक है, n d lambda by d माइनस, अब दिस d lambda से n को मल्टीप्लाई करेंगे तो n d lambda by d बन जाएगा ये वाला, और फिर 1 को d lambda by d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा d lambda by d. अब यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे, it will be n d lambda by d माइनस n d lambda by d, और ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा d lambda by d. n d lambda by d और n d lambda by d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, बीटा इज इक्वल टू d lambda by d. लेट अस डिनोट दिस इक्वेशन बाय 6. Similarly, the separation between the centers of two consecutive dark fringes is the width of a bright fringe. So a fringe width is, as I have told you, it is denoted by beta dash. Let the fringe width of dark fringe is denoted by beta dash. Therefore, beta dash is equal to y dash n minus y dash n minus 1. What is yn? Suppose if n is equal to 3, then y dash 3 is the distance of the third dark fringe from the center of the screen. Similarly, n minus 1 will become 3 minus 1, that is 2. So it will be the distance of the second dark fringe from the center of the screen. Therefore, beta dash will be equal to, so we substitute value of yn dash, which we have calculated, it is 2n minus 1. The value of yn dash is 2n minus 1 d lambda by d. So for the second one we have to substitute, for n we have to substitute n minus 1. So it will be 2, then value of n we have to substitute n minus 1. And this is minus 1 d lambda by d. So we multiply by 2n. Here it becomes 2n minus 2 minus 1. 2n minus 2 minus 1. So यहाँ पे ये बन जाएगा 2n minus 1 minus 2 plus minus 2 minus 1 minus 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2n minus 3. ठीक है, d lambda by 2 d बाहर है, इसको ये मैंने कॉमन निकाला है. कौन कॉमन निकाला है, d lambda by 2d. यहाँ पर भी है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे d lambda by 2d है और यहाँ पर भी d lambda by
2 डैश, इसको मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम छोटे जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको खोलेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा 2n-1 -2n + 3 बन जाएगा। तो 2n और 2n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 3 4, सॉरी -1 + 3 2 बन जाएगा, -1 + 3 2 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2d लैम्डा बाई 2d। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बीटा डैश है वो d लैम्डा बाई 2d निकलेगा। अब इक्वेशन 7 में भी और इक्वेशन 6 जो ऊपर है, ये देखिए ये इक्वेशन 6 है। यहाँ बीटा हमें किसके बराबर निकला है, d लैम्डा बाई d। अब इक्वेशन 7 यहाँ पे बन जाएगी, जो यहाँ पे अभी वो दूसरे पेज पे आएगा, तो वो भी यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा डैश क्या निकलेगा, d लैम्डा बाई d। जब ये 2, ये देखिए आप, ये 2 और ये 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा d लैम्डा बाई d। सो दैट विल बी इक्वेशन 7, b डैश इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d। अब बी इक्वेशन 7 और इक्वेशन 6 दोनों में बीटा और बीटा डैश का वैल्यू सेम है। बीटा बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी एंड बीटा डैश इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी। From equation 6 and 7 it follows that beta is equal to beta dash, that is all bright and dark fringes are of equal width। इसका मतलब है जितनी विड्थ, ठीक है, जितनी वाइड ब्राइट फ्रिंज है उतना ही वाइड डार्क फ्रिंज भी है। In case the two sources emit light of same amplitude A, the intensity of bright fringe is given by R square, or maximum square is equal to A plus A का whole square, that will be A plus A is equal to 2A and it will become 2A whole square। So R maximum square will be equal to 4A square। Now I is proportional to R square, ये हमें पता है। It means I maximum will be equal to R maximum square, that's I maximum square will be equal to or proportional to 4A square। The intensity of bright fringe is given by, so here is a correction, it is not bright fringe, it is dark fringe, remember this thing। यहाँ पे आप खुद देखना इसको, ये ब्राइट फ्रिंज है, इसको डार्क फ्रिंज लिखना। So it will be R minimum square is equal to A minus A square, that is 0 square। So that is R, this again यहाँ पे correction है, ये minimum square है, remember this thing, this is R minimum square is equal to 0। Now I proportional to R square, that's I minimum proportional to R minimum square, that's I, या फिर ये correction है, ये maximum नहीं, ये minimum, I minimum is equal to 0। The width of the center bright fringe is equal to the distance between the first dark fringe formed on the two sides of the screen, centers, two sides of the centers of the screen, that is beta naught is equal to 2 y dash 0, that will be 2d lambda by 2d, that will be naught will be equal to d lambda by d। Now our other topic is coherent sources of light। अब हम किसको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे, द सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट, हमारे पास दो सोर्सेज होंगे या तीन सोर्सेज होंगे या चार सोर्सेज होंगे। तो आप मान लीजिए आपके पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, दो बल्ब है आपके पास या दो कैंडल्स है आपके पास, अब क्या हम उनको बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट। द टू सोर्स ऑफ लाइट और द थ्री सोर्स ऑफ लाइट व्हाटएवर इट मे बी which emit continuous light waves of the same wavelength, same frequency, and in the same phase or having a constant phase difference are called coherent source of light। जो emit करते हैं light
सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। जो एक सोर्स इमिट लाइट करेगा वही दूसरा सोर्स भी इमिट करेगा। तो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी भी दोनों सोर्स का सेम होना चाहिए और उनके फेज सेम होना चाहिए, या अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस हो भी, फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंगल का फेज डिफरेंस होगा, तो वो कंटिन्यूस 30 डिग्री हो रहना चाहिए। We know that the resultant intensity at any point P due to the superposition of light waves। अगर अब वही लाइट वेव्स क्या सुपरइम्पोज करेंगे एक दूसरे पे, अब हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है, एक ने भी इमिट लाइट की, दूसरे ने भी इमिट लाइट की। अब दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम, वेवलेंथ भी सेम है, ठीक है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और दोनों का जो फेज है वो भी सेम है, या कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। अब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी, ठीक है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगे, तो we get a resultant वेव, एक ही वेव बन जाएगा उसको। तो उस एक वेव का जो इंटेंसिटी है दैट इज गिवन बाय आई इज प्रोपोर्शनल, ये हमने ऊपर निकाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos phi, और phi is the phase difference between the two waves। now अगर ये a और a and b are the amplitudes of the two waves, if the amplitudes of the two waves are same, what happens, let us see। then I is equal to b square plus 2bb cos theta। यहाँ पे जो a का वैल्यू था, a के बदले में हमने b लिखा है दोनों जगह पे, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बन जाएगा, ट्वाइस बी इंटू बी, बी स्क्वायर बन जाएगा 2b स्क्वायर cos फाइव। अब 2b स्क्वायर मैंने यहाँ पे कॉमन निकाला है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2b स्क्वायर क्या कॉमन निकाला है, तो i इज इक्वल टू 2b स्क्वायर 1 प्लस cos फाइव, और i इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, फिर 1 प्लस cos पर ये फार्मूला है, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला आएगा, खुद भी कर सकते हो। तो i प्रोपोर्शनल टू 2b स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2, 2 और 2 4 बन जाएगा, जब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4b स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, और अब 4b, ये जो एम्पलीट्यूड है ये कांस्टेंट है, ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो तो कांस्टेंट होगा दोनों वेव्स का, तो b कांस्टेंट है, इसलिए i प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर 5 बाई 2, व्हेयर phi इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग वेव्स। जो इंटरफेरेंस होगी दो वेव्स की बाय सुपरपोज ऑन ईच अदर, तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो phi है, गिवन at a given time and at a given position। now phi is equal to phi 1 plus phi 2। where phi 1 is the initial phase difference and phi 2 is the final phase difference between the sources A and B। If phi is not constant and varies rapidly and randomly with time, then at a given point, sometimes constructive and sometimes destructive interference will take place and no interference effect will be observed on the screen। ठीक है, अगर phi constant नहीं रहेगा तो कभी हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगी, कभी डिस्ट्रक्टिव बन जाएगी, तो जो ये पैटर्न हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, स्क्रीन पे हमें फ्रिंजेस दिखाई नहीं देंगे। Now condition for obtaining two coherent source of light, हमें two coherent source of light कैसे बना सकते हैं, ठीक है, एक ही सोर्स से हम ये बना सकते हैं, दो सोर्सेस से नहीं। कैसे बनाएंगे मैंने आपको बताया, हमें स्लिट लेना है, आगे पेपर लेना है, उसको ब्लेड से हमें काटना है, तो वो स्क्रैच देना है, उसको स्लिट बोलते हैं। तो एक सोर्स के सामने हम वो सिलेक्ट रखेंगे, तो वहां से हमें फिर वो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट should be obtained from a single source, remember this is applied by some device। डिवाइस क्या है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट जो मैंने लिया है। द टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, अब वहां से मोनोक्रोमेटिक लाइट आनी चाहिए, मोनोक्रोमेटिक मतलब जिनकी वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो। द पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स फ्रॉम टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल, जो उनके बीच में पाथ डिफरेंस अगर होगी तो वो स्मॉल होनी चाहिए, लैम्डा शुड बी वेरी स्मॉल, x should be very small। अब कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये कब तक हम सस्टेन करेंगे, क्या 2 मिनट के बाद ये इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी? अगर हम चाहते हैं कि वो देर तक रहे, तो उसको बोलते हैं, उसके लिए क्या शर्त है, उसके लिए क्या कंडीशन है कि हम बोलते हैं 2-4 घंटे तक जो हमें ये इंटरफेरेंस ये दिखाई दे।
द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट। तो उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि जो हमारे पास दो सोर्सेज होंगे वो कोहेरेंट, जिनको इंटरफ्रेंस करना है, जो लाइट वेव्स इमिट करेंगे, फिर वो लाइट वेव्स एक सोर्स का दूसरे सोर्स के साथ क्या इंटरफ्रेंस करेगा, सुपरइम्पोज करेगा। तो वो दोनों कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज मींस emitting light of same wavelength, same frequency, and with same phase or having constant phase difference. The two sources of light should be strong with least background. तो ये स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब नहीं कि 2 मिनट के बाद सोर्स खत्म हो जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव शुड बी प्रेफरेबली इक्वल। दोनों का ऑलमोस्ट जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों सोर्स का सेम होने, ए और बी सेम होना चाहिए, स्मॉल ए और बी। द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी प्रेफरेबली मोनोक्रोमेटिक। अब ये दोनों क्या मोनोक्रोमेटिक, सेम वेवलेंथ इमिट करना चाहिए। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब दोनों को एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, दैट इज द स्मॉल डी। द डिफरेंस बिटवीन टू सीरीज जो मैंने लिखा था वहाँ पे, दैट शुड बी वेरी स्मॉल। द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी पॉइंट सोर्सेज और वेरी नियर सोर्सेज ऑफ लाइट। तो पॉइंट सोर्सेज होना चाहिए या नियर सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। इंशाल्लाह अब हमारा कल जो है, कल दूसरा टॉपिक पढ़ाएंगे।